Hello students, today we will be discussing the NEET 2020 question paper with answer keys and solution. Let's start. The first question is, which of the following is not an attribute of a population? This question is directly picked up from NCERT. Not only this, but as I've seen the entire question paper, majority of the questions, were directly picked up from NCERT. So we can see there are 3 points written here. Sex ratio, it is an attribute. Natality is also an attribute. Mortality is also an attribute, but species interaction is not an attribute. So this is the correct answer. Species इंटरेक्शन इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन. और ये क्वेश्चन देखो डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है. इसमें लिखा है अ पॉपुलेशन हैज़ सर्टन एट्रीब्यूट्स, बर्थ रेट्स, डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज, लैग फेज, सेनेसेंस एंड डॉर्मेंसी. अब देखो दिस लॉग फेज, whenever we are talking about the growth curve, जो log phase होता है उस फेस में ग्रोथ रैपिड होती है, मैक्सिमम ग्रोथ होती है उसमें. लैग फेस में स्लो ग्रोथ होती है, लॉग फेस में मैक्सिमम ग्रोथ होती है, और फिर स्टेशनरी फेस में बहुत स्लो ग्रोथ होती है. सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द लॉग फेस. सो द करेक्ट आंसर इज लॉग फेस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the roots that originate from the base of the stem are. ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है. इट्स रिटन हियर, these roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root. Okay, so base of stem से जो root arise होती हैं, they are called as the fibrous root. So the correct answer is 1. Match the following. Okay, typhoid is caused by Salmonella typhi. Pneumonia is caused by Haemophilus influenzae. Filariasis, it is caused by Vauchereria. Filariasis or elephantiasis, it is caused by Vauchereria. And malaria, it is caused by Plasmodium. Okay, so the correct answer is option number 2. A 3, B 4, C 1 and D 2. Next question. In which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? अब यहाँ पे लिखा है embryos are transferred. Okay, so we have 4 options. ZIFT is zygote intrafallopian transfer and IUT intrauterine transfer. बाकी options भी देखते हैं. GIFT is gamete intrafallopian transfer. So this cannot be the correct answer because here यहाँ पे एम्ब्रियो के ट्रांसफ़र होने की बात की जा रही है, ना कि गैमीट की. इक्सी एंड जिफ्ट, इक्सी इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. गिफ्ट एंड इक्सी, इट कैनॉट बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इन गिफ्ट the gamete is getting transferred. So the correct answer is 1, ZIFT, in which the zygote is transferred. Okay, zygote intrafallopian transfer and IUT, this is the correct answer. Next question, identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood group. The gene I has 3 alleles. ठीक है, this is correct statement क्योंकि gene I जो है उसकी 3 alleles होती हैं, IA, IB and small I. A person will have only 2 of the 3 alleles. ये भी ठीक है, या तो किसी इंडिविजुअल के पास 2 ही एलील्स होंगी, IA, IB और स्मॉल आई. इन तीनों में से सिर्फ 2 ही एलील्स होंगी एक इंडिविजुअल के पास. When IA and IB are present together, they express same type of sugar. No, they express different types of sugar. Okay, IA and IB, they are expressing different types of sugar. Allele I does not produce any sugar. This is correct. Allele I जो होता है वो कोई भी sugar produce नहीं करता है. So the correct answer is option number 3. Okay, next question, choose the correct pair from the following. Ligase join the 2 DNA molecule. This is correct. Ligase जो है वो 2 DNA के molecules को join करता है. Polymerase breaks the DNA into fragment. No, पॉलीमरेज का फंक्शन पॉलीमराइजेशन होता है, ना कि डीएनए को ब्रेक करना.
न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, न्यूक्लियस का फंक्शन होता है न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेक डाउन करना। एक्सोन्यूक्लियस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, नहीं विद इन डीएनए नहीं, ये साइड से डीएनए को साइड से कट करता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज लाइगेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। हीमोफीलिया वाई लिंक्ड, दिस इज रॉन्ग। हीमोफीलिया वाई लिंक्ड नहीं होता है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। फिनाइल कीटोनूरिया, it is autosomal dominant, no it is not autosomal but dominant, it is autosomal recessive trait. Sickle cell anemia, it is autosomal recessive trait which is due to the mutation in the gene present in chromosome number 11. This is the correct answer. Thalassemia X linked, no, thalassemia is autosomal recessive disorder. So the correct answer is option number 3. मैच द फॉलोइंग, ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट। ग्रिगेरियस मतलब जो ग्रुप्स में झुंड में जो अटैक करते हैं, तो वो लोकस्ट, लोकस्ट के अटैक के बारे में आपने रिसेंटली सुना भी होगा। अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। अडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स जैसे कि स्टारफिश, उनके अडल्ट्स जो होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जो उनकी लार्वल स्टेजेस होती हैं वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती हैं। बुक लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं स्कॉर्पियन में। और बायोल्यूमिनेसेंस देखा जाता है टीनोप्लाना में, जो कि टीनोफोरा का मेंबर है। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज A4. ओके, सो द सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, A4. ओके, दिस इज B not A, दिस इज C. A4, B1, C2 and D4. Okay, so the correct answer is option number 2. The infectious stage of plasmodium that enters the human body, very simple question. कौन सी infectious state है plasmodium की जो enter करती है human body में? The answer is sporozoid stage and the answer is directly written in NCERT. That the life cycle of plasmodium enters the human body as a sporozoite, which is the infectious form. Next question, identify the substances having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure. मतलब glycosidic bond और peptide bond, ये दोनों बॉन्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? शुगर्स में, हमेशा याद रखना, शुगर में प्रेजेंट होता है या कार्बोहाइड्रेट में। और पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स में। तो हमें इसमें से ऐसी ऑप्शन छांटनी है जो पहला शुगर हो और दूसरा प्रोटीन हो। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इसमें ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन है लेकिन फर्स्ट ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो लेसिथिन है, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इन्यूलिन इज अ प्रोटीन, सॉरी, इन्यूलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट and insulin is a protein, so the correct answer is 4. Inulin क्या होता है? Inulin is a polymer of fructose. Okay, it is a polymer of fructose, it is a carbohydrate, so इसमें glycosidic bond होगा। और insulin एक प्रोटीन होता है और प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, so this is a protein, so the correct answer is 11. 11th question is 4. The plant parts which consist of two generations, one within the other, मतलब एक के अंदर एक, दो generations होंगी। Pollen grains inside the anther, germinated pollen grain with two male gametes, seed inside the fruit and embryo sac inside the ovule। अब इसमें देखिए, इसमें A ऑप्शन pollen grain क्या होते हैं? Haploid, और ये प्रेजेंट होते हैं एंथर में, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर डिप्लॉइड के अंदर प्रेजेंट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन सीड इनसाइड फ्रूट, ये भी इनकरेक्ट है। और एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओव्यूल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि एम्ब्रियो सैक इज हेप्लॉइड एंड द ओव्यूल इज डिप्लॉइड। तो अगेन
haploid structure is present in the diploid structure. So the correct answer is A and D. Next, the products of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is or are अब देखो जो रिएक्शन होता है नाइट्रोजनस एंजाइम जो रिएक्शन कैटेलाइज करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, तो उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये देखिए रिएक्शन एनसीईआरटी से पिकअप गया, इसमें देखिए अमोनिया फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज अमोनिया एंड हाइड्रोजन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज, दैट इज द गैप 1 ऑफ इंटरफेस. गैप 1 फेज जो होता है, सारे जो साइक्लिकल इवेंट्स होते हैं सेल साइकिल के, वो इस तरह होते हैं G1S G2M. G1 फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज. तो G1 के बारे में पूछा गया है. डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, नहीं, इस फेज में रेप्लिकेशन नहीं होता है, बल्कि रेप्लिकेशन S फेज में होता है. Reorganization of all components of cell take place, no. Cell is metabolically active, grows but does not replicate, yes, this is correct. Nuclear division takes place, no, nuclear की division तो M phase में होती है. ठीक है, और ये यहाँ पे NCERT में ये लिखा हुआ भी है that during G1 phase the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. It is directly picked up from NCERT. So the correct answer is 3. Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in, देखो ये वाला जो cuboidal epithelium है वो कहाँ मिलता है? PCT. PCT that is proximal convoluted tubule of nephron. ये वहाँ पे it is located there. So the cuboidal epithelium with brush border of microvilli, it is found in PCT, proximal convoluted tubule of nephron. Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? They are not bound by any membrane. ये लिखा हुआ है inclusion bodies की information, ये correct है. वो they do not have any membrane. This option is correct. They are involved in ingestion of food. नहीं, वो ingestion of food में involved नहीं होते हैं. They lie freely in cytoplasm. This is also correct. These represent reserve material in cytoplasm. This is also correct. So here the correct answer we had to pick up the incorrect answer, so the here option number 2 is the incorrect option. Next, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells? अब देखो glycoproteins और glycolipids का formation होता है Golgi apparatus में. Directly NCERT से बिल्कुल बहुत simple question pick up किया गया है. So the formation of glycolipids and glycoproteins takes place in the Golgi apparatus. Next, again gel electrophoresis. Separated DNA fragments can be visualized with the help of. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के सेगमेंट्स को देखने किस तरह से देखा जाता है? उनको इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है और फिर उसको यूवी लाइट से एक्सपोज किया जाता है. इट इज़ रिटन इन एनसीईआरटी. So ethidium bromide in UV radiation. So the correct answer is option number 2. Identify the wrong statement with reference to transport of oxygen. ठीक है, सब तो बाइंडिंग फर्स्ट ऑप्शन है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज करेक्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ही जल्दी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफियर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा अगर, तो वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देगा हीमोग्लोबिन से, वो इंटरफियर करेगा. लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. नहीं, ये फेवर नहीं करता है बल्कि इंटरफियर करता है. Okay, so the correct answer is this is correct. Low PCO2, अगर लो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा एल्वियोलाई में तो वो फेवर करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए. लेकिन इनकरेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है.
it says that high hydrogen concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. अगर high concentration होगा alveoli में हाइड्रोजन आयंस का तो वो फेवर करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट अवे पिक्ड अप फ्रॉम एनसीईआरटी. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2, low PCO2, lesser hydrogen ion concentration and low temperature. These factors are favorable for formation of oxyhemoglobin. तो oxyhemoglobin के formation के लिए 4 factors हैं. हाई PO2 होना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए, लेस हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए. यहाँ लिखा है हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, रे फ्लोरेट्स हैव inferior ovary. It's written here in NCERT. Hence the ovary is said to be inferior as in flowers of guava and cucumber and the ray florets of sunflower. Next, question number 21. The specific palindromic sequence which is recognized by EcoR1. ये तो रट लीजिए इस चीज़ को. तो EcoR1 का जो जिस सीक्वेंस को EcoR1 पहचानता है वो है GAATTC. और सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा 5' end to 3' end GAATTC. Okay, so the correct answer is this one, first one. This is wrong. GGAACC wrong. CTTAAG wrong. GGATCC this is also wrong. ठीक है. और ये वाला जो थर्ड ऑप्शन में ये नीचे GAATTC लिखा है ना, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना. हमें जो करेक्ट ऑप्शन है जब हम चूज़ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो 5' से 3' डायरेक्शन में GAATTC होना चाहिए. ठीक है. Next question. Identify the wrong statement with regard to restriction enzyme. Each restriction enzyme functions by inspecting the length of DNA sequence. This is also correct. पहले restriction enzyme जो है वो DNA की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, फिर वो DNA के स्ट्रैंड को कट करता है पैलिंड्रोमिक साइट पे. ये restriction enzyme यूजफुल होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Sticky ends can be joined by using DNA ligase. This statement is not correct. So the correct answer of this question is 4. Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? अब देखो, the remaining major part of sludge is pumped back into large tanks called anaerobic sludge digester. क्या डाला जाता है वापस anaerobic sludge digester में? activated sludge. वो activated sludge जिसमें ऑलरेडी वो इनोक्यूलम की तरह सर्व करता है क्योंकि उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. इनोक्यूलम की तरह सर्व करता है और उसको वापस से हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डालते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन होगा तो कौन कौन से इवेंट्स होंगे? सबसे पहले यहाँ ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से लिया गया है. इसमें देखिए, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा. दिस इज करेक्ट. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरकॉस्टल मसल्स. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरकॉस्टल मसल. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, नाउ पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज. पल्मोनरी जो वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज नहीं होती है बल्कि इंक्रीज होती है. तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस. ओके, सो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होता है बल्कि वो डिक्रीज होता है. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी. नेक्स्ट, if the head of the cockroach is removed it may live for few days. head अगर remove कर दिया जाए cockroach का, so because the head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body. ठीक है, सिर्फ जो हेड है उसमें थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, बाकी का नर्वस सिस्टम का पार्ट रेस्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है. तो अगर उसका हेड भी अगर कट कर दे तो भी वो फॉर एटलीस्ट फॉर 1 वीक वो तब भी जिंदा रहता है.
So the correct answer is option number 3, because the head holds a small proportion of nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body. Next question, which of the following statement are true for phylum Chordata? phylum Chordata के बारे में कौन सा statement correct है? In Urochordata, notochord extends from head to tail and it is present throughout the life. No, this is wrong. In Vertebrata, notochord is present during the embryonic period only. Nervous system, central nervous system is dorsal and hollow. This is correct. Chordata is divided into 3 subphyla: Hemichordata, Tunicata, and Cephalochordata. This is also incorrect. Okay, so the correct answer is option number B, option number 4, B and C. In vertebrata, notochord is present during the embryonic period only. देखो यहाँ पे vertebrates में notochord सिर्फ embryonic period में होती है और बाद में वो replace हो जाती है vertebral column से. और जो central nervous system जो होता है chordates में वो dorsal और hollow होता है. B and C is the correct option. So the correct answer is option number 4. Match the following organism with their use in biotech. Bacillus thuringiensis, BT cotton के बारे में आपने सुना है. Okay, so it is cry proteins. It is matching with cry proteins. Thermus aquaticus एक इस organism से polymerase DNA polymerase extract किया जाता है. Okay, so the correct answer is 3. Agrobacterium tumefaciens, ये एक क्लोनिंग वेक्टर होता है. और साल्मोनेला टाइफ्यूम्यूरियम जो होता है it was first used in the construction of first rDNA molecule. Okay, so A4B3. Okay, A4B3 कहाँ पे नज़र आ रहा है हमें? A4B3C1D2. So the correct answer is option number 2. Next, match the following statements. Iron. Okay, iron देखो, it is required for chlorophyll biosynthesis. zinc का कहाँ पे इंडोल एसिटिक एसिड के बायोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होता है. बोरॉन का याद रखना, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन. जब हम पॉलन जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो जो हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाते हैं उस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में भी हम बोरिक एसिड ऐड करते हैं. अगर आपको ने कभी ध्यान दिया होगा तो बोरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं जब हम पॉलन की स्लाइड बनाते हैं. मैग्नीज, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. सो A3B4C2D1. So the correct answer is option number 3. Identify the incorrect statement. Heartwood does not conduct water but gives mechanical support. This is correct. Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf. This is also correct. Sapwood is the innermost secondary xylem. No, it is the outermost secondary xylem. This is incorrect. Due to deposition of tannins, resins, oils, heartwood is dark in color. This is also correct. So the correct answer of this question is option number 3. Match the following. Inhibitor of catalytic activity. Malonate inhibit करता है catalytic activity को. Possesses peptide bonds. अब peptide bonds कहाँ होंगे? प्रोटीन में होंगे. और इनमें से देखो कौन सा प्रोटीन है? No. Collagen. Okay, I'll delete it. First is malonate, possesses peptide bonds, collagen. Okay, cell wall material in fungi. This is very easy. Chitin होता है और secondary metabolite है resin. Okay, so the correct answer is option number 1. ओके, मैलोनेट जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस का. कोलाजन एक प्रोटीन होता है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं. काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल में होता है. ये तो आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग. और रिसिन जो है वो एक टॉक्सिन है
और वो जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। जो सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होती है? वो कंप्लीट होती है जब उसके अंदर स्पर्म एंटर कर जाता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम। जब स्पर्म एंटर करता है ओवम के अंदर, उसके बाद में जाके मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। एंड इट इज़ मैंशनड इन NCERT ऑल्सो। The sperm enters into the cytoplasm and this induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte, ठीक है। प्रायर टू ओव्यूलेशन नहीं होता है, कॉपुलेशन के टाइम पे भी मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन भी मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से 7 मिलियन है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, अब ट्रांसलेशन की सबसे फर्स्ट फेज क्या होती है? फर्स्ट फेज में जो अमीनो एसिड होता है वो एक्टिवेट होके ATP की प्रेजेंस में tRNA से ज्वाइन होता है, ओके। In the first phase, the amino acid are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA. And this process is called as charging of tRNA, और charging of tRNA को हम amino acylation of tRNA भी कहते हैं, ओके। सो फर्स्ट जो स्टेप है that is the amino acylation of tRNA। मतलब जो tRNA है उस tRNA से आकर ATP की प्रेजेंस में जो अमीनो एसिड है वो आके अटैच हो जाएगा। ये फर्स्ट फेज है इस फर्स्ट ट्रांसलेशन का, और इस स्टेप को हम कहते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी? वेस्टर्न घाट्स, मेडागास्कर, हिमालयाज और अमेजॉन फॉरेस्ट। This question is also picked up from NCERT. The largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth. तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? अमेजॉन फॉरेस्ट में। एंड दैट इज़ वाई द अमेजॉन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन। दिस इज करेक्ट। जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में सिंथेसिस होता है उसका। प्रो इंसुलिन हैज़ एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी पेप्टाइड को कट करके रिमूव किया जाता है, रिमूव होता है वो तब जाके ए और बी पेप्टाइड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चेन्स linked together by hydrogen bonds? No, they are linked together by disulfide bonds. Genetically engineered insulin is produced in E. coli. This is also correct. So option number 3 is incorrect and we had to pick up the incorrect option. So the answer is 3. The transverse section of a plant shows following anatomical features. अगर क्रॉस सेक्शन कट करें प्लांट का और ये फीचर्स हमें देखने के लिए मिले तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा प्लांट का पार्ट है। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ। जहाँ भी ये देखें आप स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल लिखा हुआ है दैट मीन्स यहाँ पे मोनोकॉट की बात हो रही है, ओके। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोकॉट्स। लार्ज कॉन्स्पिक्वस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ये भी मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट के स्टेम में। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होते हैं मोनोकॉट के स्टेम में, और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट के स्टेम में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये NCERT में भी लिखा हुआ है, देखो, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, लार्ज कॉन्स्पिक्वस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोकॉट स्टेम के हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किस में होती हैं? साइक्लोस्टोम्स में। हीट्रो सर्कल कॉर्डल फिन किस में होगा? ये होता है कॉन्ड्रिक्थीस में। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है बोनी फिशेस में, बोनी फिशेस आर ऑस्टिक्थीस। और पॉइजन स्टिंग किस में होगा? ट्राइगॉन में, ट्राइगॉन में पॉइजन स्टिंग होता है।
तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का इट इज़ ऑप्शन नंबर 1, जिसमें A 2, B 3, C 4 and D 1. Correct answer is option number 1. From the experiment of S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask. S.L. मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के क्लोज्ड फ्लास्क में किन किन चीज़ों को मिक्स किया था? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर, 4 चीज़ें, और कितने टेम्परेचर पे? 800 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, बाकी ऑप्शंस में यहाँ पे मीथेन की जगह CH3 लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया. और ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे टेम्परेचर 600 लिखा है, तो ये भी इनकरेक्ट है. एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय. देखो, एल्फ्रेड वॉलेस नहीं है, उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट पे एवोल्यूशन का जो एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी है उसमें उस पर वर्क नहीं किया था. चार्ल्स डार्विन ने भी नहीं किया था, ऑपरिन ने भी वर्क नहीं किया था. कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, ही इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्क ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज़. और उन्होंने ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस है उसको डिसअप्रूव किया था. मतलब कि बेयर ने ये कहा था कि जो एम्ब्रियोज होते हैं दे डू नॉट पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी जो एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि ऑल दी ऑर्गेनिज्म दे पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक लाइफ. लेकिन बेयर ने इस चीज़ को डिसअप्रूव किया था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is. ठीक है, अब देखो जो रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर की वजह से वाटर का लॉस होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आती हैं टिप ऑफ लीफ ब्लेड्स पे अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट. So the correct answer here is root pressure, option number 2. Next question 41. Secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine, ये प्लांट में क्यों प्रोड्यूस होता है? न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इनकी? नहीं. ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं. रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है? नहीं. क्यों प्रोड्यूस होता है ये सारे केमिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स में? डिफेंस के लिए. इट इज़ रिटन अगेन क्लियरली इन योर NCERT. दे आर प्रोड्यूस्ड एज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, ताकि वो अपने आप को बचा सकें ग्रेजर्स मतलब उन एनिमल्स से जो उनको खाते हैं. The oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to formation. अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. Rubisco एंजाइम की जो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी है फोटो रेस्पिरेशन में, उससे क्या होता है? तो Rubisco एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी. सो इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड्स विद Rubisco. Okay, in C3 plants, some oxygen binds with Rubisco and hence CO2 fixation is decreased. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. RUBP जो है जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है Rubisco के साथ में, तो जो RUBP है वो PGA में कन्वर्ट ये फॉर्म करता है फॉस्फोग्लिसरेट, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का. फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन कंपाउंड है और फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है, देखो द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ Rubisco एंजाइम, Rubisco एंजाइम की जो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी है फोटो रेस्पिरेशन में, उसकी वजह से क्या होता है, जब ऑक्सीजन Rubisco से बाइंड हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए फॉस्फो
ग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए थे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, लेकिन वो नहीं बनेंगे क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड हो गया है रुबिस्को के साथ। तो अब क्या बनता है, अब बनता है एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट का। तो फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन कंपाउंड है और फॉस्फोग्लाइकोलेट जो वो एक 2 कार्बन कंपाउंड है। तो इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, दिस इज इनकरेक्ट। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज करेक्ट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास तो एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड का बन रहा है और एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन कंपाउंड का बन रहा है। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बन रहा है और वो जो मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है वो है फॉस्फोग्लिसरेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। BT cotton variety that was developed by introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to insect pest के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है। कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है, कॉटन बॉलवर्म। जो बीटी कॉटन वैरायटी हम बनाते हैं वो किसके लिए रेजिस्टेंट होती है, प्लांट नेमाटोड्स के लिए नहीं। प्लांट नेमाटोड्स हमने कहाँ पे पढ़ा था, आरएनए इंटरफेरेंस में, मेलेओडोगाइन इनकॉग्रेशिया आपको याद होगा अगर। इंसेक्ट प्रीडेटर्स के लिए भी नहीं, फंगल डिसीजेस के लिए भी नहीं, बल्कि ये इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से क्या चीज़ इवॉल्व हुई है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन, समथिंग विच इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन ने ऑब्जर्व किया था कि अलग अलग टाइप की फिंचेस हैं जिनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग हैं, जिनकी बीक्स अलग अलग हैं, फीडिंग हैबिट अलग अलग है। तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से था, नहीं, दिस वॉज नॉट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, यस, वीड्स जो है वो हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं और वीड्स ने भी एक तरीका अपना लिया है रेजिस्ट करने का हर्बिसाइड को। सो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। जितना ज़्यादा ड्रग का कंजम्पशन होगा तो ऑर्गेनिज्म उतना ही रेजिस्टेंट बनता जाएगा उसके लिए। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अलग अलग जो डॉग्स की ब्रीड्स हैं विच आर क्रिएटेड बाय मैन बाय क्रॉस ब्रीडिंग, so this is also by anthropogenic action. So the correct answer here is 3, B, C and D. Identify the wrong statement related to immunity. When exposed to antigen, antibodies are produced in host body and it is called active immunity. This is correct. Okay, active immunity में क्या होता है कि जब एंटीजन से एक्सपोजर मिलता है तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली गिवन इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये भी करेक्ट है। पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ क्विक, नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप होने में टाइम लगता है। बॉडी के अंदर जब एंटीजन एंटर करता है तो बॉडी को टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में, तो ये क्विक नहीं होती है। सो दिस इज़ द इनकरेक्ट आंसर। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर, इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर पैसिव इम्यूनिटी, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। फीटस जो है वो रिसीव करता है ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू, तो ये एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन हियर इज़ ऑप्शन नंबर 3. By which method was a new breed Hisardale of sheep formed by using Bikaneri ewes and Merino rams? इन दोनों को क्रॉस करके, बीकानेरी यूज और मेरिनो रैम्स को क्रॉस करके हिसारडेल बना था। पर कौन से मेथड से? आउट क्रॉसिंग से नहीं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग से नहीं, क्रॉस ब्रीडिंग से यस, इन ब्रीडिंग से नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3,
Hisardale was produced. It was the new breed. It was formed by cross breeding. ओके आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट. इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. नहीं, इलियम तो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है. दिस इज इनकरेक्ट. सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर. नहीं, ये तो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेरोसा. एलिमेंट्री कनाल की ये आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा. इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट. yes, it is a highly coiled part. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डिओडिनम. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स डिओडिनम से अराइज नहीं होता बल्कि वो सीकम से अराइज होता है. ठीक है, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम डिओडिनम, इट अराइजेस फ्रॉम सीकम. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से बनता है ब्यूटायरिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन मिलता है. मोनास्कस परप्यूरियस. मोनास्कस परप्यूरियस से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, मिलता है उससे. एस्परजिलस नाइजर से साइट्रिक एसिड मिलता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जिसमें A2, B1, C4, D3. Okay, next question. Presence of which of the following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus? Diabetes mellitus condition में क्या होता है इन चारों में से? यूरीमिया एंड कीटोनूरिया. नहीं, कीटोनूरिया होता है लेकिन यूरीमिया नहीं होता है. यूरीमिया एंड रीनल कैलकुलाई. नहीं, रीनल कैलकुलाई जो होते हैं वो होते हैं स्टोन्स जो होते हैं, तो स्टोन्स नहीं होते हैं डायबिटीज़ में. कीटोनूरिया. कीटोनूरिया का मतलब होता है एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन. और ग्लाइकोसूरिया इसका मतलब प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. सो बोथ दीज कंडीशंस आर फाउंड इन डायबिटीज मेलाइटस. और रीनल कैलकुलाई एंड हाइपरग्लाइसीमिया, नो, अगेन दिस इज नॉट द correct option. So the correct answer here is option number 3. Floridian starch has structure similar to. Floridian starch का structure किसके similar होता है? The food is stored as Floridian starch which is similar to amylopectin and glycogen. This is again directly picked up from NCERT. So the correct answer here is option number 2, amylopectin and glycogen. ओके इसमें से सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है जिसमें चारों सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो. गोनोरिया इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सिफिलिस भी, जेनाइटल हर्पीज भी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट. मलेरिया इज़ नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये भी इनकरेक्ट है. मलेरिया और फाइलेरिया STD नहीं है, कैंसर भी STD नहीं है. तो बाकी तीनों ऑप्शंस में एक ना एक डिजीज़ जो है वो STD नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे. गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B and HIV. These are basically regarded as the sexually transmitted diseases. ओके, मैच द फॉलोइंग आ गया. ये डिफरेंट स्टेजेस हैं. मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज, जिसमें LZPDD 5 स्टेजेस होती हैं, 5 सब स्टेजेस होती हैं. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. और इन 5 स्टेजेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना. इसमें से इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चंस हैं इस नीट 2020 में. 2 क्वेश्चंस हैं इस सेम टॉपिक से. तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? जाइगोटीन में साइनेप्सिस फॉर्मेशन होता है. पेकाइटीन में क्या होगा? पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है. डिप्लोटीन स्टेज में काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है. ओके, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइस्मेटा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, A4, B3, C2 and D1.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेल्यूलर एल्गी, इसमें से यूनिसेल्यूलर एल्गी का कौन सा पेयर है? इसमें देखो क्लोरेला और स्पायरुलिना, ठीक है, ये दोनों यूनिसेल्यूलर है, बाकी में ये वॉलवॉक्स कॉलोनियल है, और बाकी में ऑप्शंस में मल्टी सेल्यूलर या कॉलोनियल एल्गी दिया हुआ है बाकी के 3 ऑप्शंस में। सो यूनिसेल्यूलर एल्गी जो है वो क्लोरेला और स्पायरुलिना है। जेरिडियम, ग्लासिलेरिया, लैमिनेरिया, सरगैसम, ये मल्टी सेल्यूलर है और वॉलवॉक्स कॉलोनियल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज release of will cause release of ovum from the Graafian follicle? इसमें से ग्राफियन फॉलिकल के रिलीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है उस टाइम पे एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच रिलीज होता है, और एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। बाकी के ऑप्शंस में है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इनकरेक्ट। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच, इनकरेक्ट। एलएच का लो नहीं बल्कि हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसको हम एलएच सर्ज भी कहते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफएसएच, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, एफएसएच का भी हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis, इसको तो रट लो, बैसिलस thuringiensis पे हम ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन, एडिनोसिन डी कहाँ चला गया ये, एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी, ये डी एमिनेज इधर लिखा है, ये एडीए डेफिशिएंसी कहते हैं जिसे, एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी, ठीक है। इसको इस डिसीज़ के लिए जीन थेरेपी की गई थी सबसे पहली बार, तो इसका आंसर है जीन थेरेपी। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस का आंसर है सेल्यूलर डिफेंस, ये सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है आरएनए इंटरफेरेंस। और पीसीआर, पीसीआर से हम डिटेक्शन करते हैं एचआईवी इन्फेक्शन का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, A4, B1, C2, D3। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 1947, किस चीज़ के कंट्रोल के लिए साइन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? फॉर टू कंट्रोल एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये लिखा इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए किया गया था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये नहीं है। रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स? वायरॉइड्स के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, नहीं, उनमें प्रोटीन कोट तो होता ही नहीं है, उनके पास फ्री आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट, नो। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट, नो। So it is also written here in NCERT that they have free RNA, it lacks the protein coat. So the option number 2 is the correct answer. The ovary is half inferior. Half inferior ovary का देखो ये लिखा है, the ovary here is said to be half inferior, okay, in plum, rose, peach. किस किस में? प्लम, रोज और पीच में। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4। द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्शन ऑफ, एंटेरोकाइनेज एंजाइम किस चीज़ के कन्वर्शन में हेल्प करता है? ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने की। ट्रिप्सिनोजिन जो है इनएक्टिव एंजाइम है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ट्रिप्सिन क्या करता है? ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। तो प्रोटीन इंटू पॉलीपेप्टाइड इनकरेक्ट, ट्रिप्सिनोजिन इंटू ट्रिप्सिन करेक्ट, कैसिनोजिन इंटू कैसीन इनकरेक्ट, पेप्सिनोजिन इंटू पेप्सिन इनकरेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मैच द फॉलोइंग।
फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ से नहीं, इसको हम फर्स्ट से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा एक प्लांट होगा। ओके तो इसमें 4 ट्रॉफिक लेवल्स हमें दी गई हैं और 4 ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं और हमें मैच करना है कौन सी ट्रॉफिक लेवल है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को मैच करते हैं, ये है ग्रास। सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रास, जो क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ही होता है। तो यहाँ से हमें एक क्लू मिल गया है कि सी है 4 और C4 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहाँ से हमें ये क्लू मिल गया है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी की ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट, तो रैबिट कहाँ आ गया, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर है क्रो। क्रो एक ओमनीफोरस ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करता है। और क्रो कैन बी ईटन अप बाय द वल्चर। ओके तो वल्चर हो गया फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। फर्स्ट पे ग्रास, सेकंड पे रैबिट, थर्ड पे क्रो और फोर्थ पे वल्चर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट। मेंडल ने कितनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज एज अ पेयर सेलेक्ट की थी, 14। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। मैच द फॉलोइंग अगेन। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ प्रेजेंट होता है, ईयर में। ईयर के कौन से पार्ट में, बेसिलर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कॉक्लिया, कॉक्लिया जो होता है हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है ईयर का। और ये जो कॉइल्ड पार्ट है ये मैच हो रहा है इससे कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेबायरिंथ। यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो कनेक्ट करती है मिडल ईयर को फेरिंक्स के साथ। और स्टेप्स जो है, स्टेप्स बैलस इनका स्टेप्स, ये 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं और ये अटैच्ड होते हैं ओवल विंडो से। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3, A4, B2, C1, D3। नेक्स्ट, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन कैसे होता है। देखो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली दोनों एक्वेटिक प्लांट्स है, बोथ ऑफ देम आर एक्वेटिक प्लांट्स, बट देयर फ्लावर्स दे इमर्ज अबव वाटर लेवल एंड देन दे आर पॉलिनेटेड बाय आइदर इंसेक्ट्स और विंड। हैं तो दोनों एक्वेटिक, लेकिन उनके फ्लावर्स पानी के ऊपर इमर्ज रहते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स या फिर विंड के द्वारा उनका पॉलिनेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज इंसेक्ट्स और wind. Next question, name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop। ये देखो डायरेक्टली NCERT से है। spraying sugarcane crop with gibberellins increases the length of stem, thus increasing the yield as much as 20 tons per hectare। तो शुगर केन प्लांट पे अगर गिब्रेलिन्स का छिड़काव किया जाए, स्प्रे किया जाए, तो उसकी जो लेंथ है स्टेम की वो इंक्रीज हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। अभी तक हमने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दे आर डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम NCERT। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू whenever you are preparing for NEET examination, you first learn NCERT thoroughly, completely. You do not leave even a single word from NCERT। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, PS2 फोटोसिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6F तक इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट करता है प्लास्टोक्विनोन। इसका एक पूरा सिस्टम है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। एब्सिसिक एसिड ये इनिबिट करता है सीड, और फिनोलिक एसिड जो है ये भी इनिबिट करता है, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड ये भी इनिबिट करता है, लेकिन जो गिब्रेलिक एसिड है वो इनहिबिट नहीं करता है। तो इसमें से गिब्रेलिक एसिड इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। नेक्स्ट, नेम ऑफ एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो जैसे ही ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स की बात आती है, आप लोग ये सोचते हो कि इसका एंजाइम, इसका आंसर तो हेलिकेस होगा,
लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें पूछा गया ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब कौन सा एंजाइम हेल्प करता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन करने में। आंसर इज आरएनए पॉलीमरेज। ये देखो आंसर यहाँ लिखा है, polymerizes DNA RNA polymerase polymerizes in a template depending fashion following the rule of complementarity. It somehow also facilitates opening of helix. It somehow, it मतलब यहाँ पे RNA polymerase की बात हो रही है। It also facilitates opening of helix and continuous elongation. So transcription जब होता है उस टाइम पर RNA polymerase एंजाइम ही DNA हेलिक्स को ओपन करने में हेल्प करता है। So the correct answer is option number 4. Which of the following would help in prevention of diuresis? Diuresis means extreme excess excretion of urine. तो कौन प्रिवेंट करेगा डायूरेसिस को? मोर वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच? नो। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा रीनल टिब्यूल में एल्डोस्टेरॉन की वजह से, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर एक्सक्रीट आउट नहीं होगा और डायूरेसिस नहीं होगा। तो ये डायूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है एल्डोस्टेरॉन, जिसकी वजह से सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ATF ANF कॉजिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ANF जो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है कॉजिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इसकी वजह से भी डायूरेसिस प्रिवेंट नहीं होता है। डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So the correct option here is option number 2, reabsorption of sodium and water. Next question, GPP NPP, इसमें क्या रिलेशन है? वेरी सिंपल, GPP विच इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस R, R इज रेस्पिरेटरी लॉस। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉस अगर माइनस कर दें तो आता है NPP विच इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? नहीं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होगा NPP से। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन NPP? यस, दिस इज करेक्ट, GPP इज ऑलवेज मोर देन NPP. GPP and NPP are one and same? No, they are not one and same. There is no relationship between GPP and NPP. This is also incorrect because a direct equation is there given in NCERT. GPP gross primary productivity minus R respiratory loss is equal to NPP net primary productivity. So the correct answer is option number 2. Now question number 70, match the following. प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या सिक्रीट होगा? हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जोना पेल्यूसिडा, ये ओवम की लेयर है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। लेडिक सेल्स से एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4, A2, B3, C4, D1. नेक्स्ट, स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहाँ मिलते हैं? ये देखो स्ट्रोबिलाई कहाँ पे प्रेजेंट है? इक्विसिटम में। ओके, सो दे आर फाउंड इन इक्विसिटम। साल्विनिया में नहीं, टेरिस में नहीं, मार्केंशिया में भी नहीं होते, तो स्ट्रोबिलाई मिलते हैं इक्विसिटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज विच इज कॉल्ड एज द क्विसेंट स्टेज और G0 फेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। अब देखो सेल साइकिल इवेंट्स में मैंने आपको अभी बताया है, ये क्वेश्चन इससे इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। G1 S G2 M, ये 4 फेजेस हैं। M फेज के बाद आता है G0 फेज। G0 फेज में सेल इनएक्टिव रहती है। ओके, अब देखो G0 फेज किसके बाद आया? ये आया है M1 फेज के, M फेज के बाद। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, M phase. Flipper of penguin and dolphin are examples of, ये देखो देखो फ्लिपर, पेंगुइन के जो फ्लिपर होते हैं और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स होते हैं वो दोनों एग्जाम्पल्स हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। क्यों कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के? क्योंकि ये दोनों एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं। एनालोगस कैसे? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर तो
डिफरेंट है, लेकिन दोनों के फंक्शन सेम है, दोनों स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों हुए एनालोगस स्ट्रक्चर, और एनालोगस स्ट्रक्चर जो है वो रिजल्ट होते हैं किसका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अब है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, मतलब डीएनए में दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर, और टोटल बेस पेयर एक मैमेलियन सेल में है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो हमें टोटल डीएनए की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखने में ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। ये डीएनए की ये एंटायर लेंथ है जो हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन हमें पता क्या है कि इस टोटल लेंथ में नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁹, और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। सो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू द लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 2.2 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इसको नैनोमीटर को यहाँ ये नैनोमीटर में गिवन है डिस्टेंस, और यहाँ पे मीटर में आंसर लिखा है, तो मीटर और नैनोमीटर का ध्यान रखेंगे आप जब कैलकुलेशन करेंगे। जब अगर नैनोमीटर में आंसर आएगा तो उसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आंसर यहाँ मीटर में लिखा हुआ है। QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, QRS कॉम्प्लेक्स ECG में डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT अगेन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब देखो, इज़ानोफिल्स जो है वो रिलीज करती है हिस्टामिनेस एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। बेसोफिल्स रिलीज करते हैं ग्रैन्यूल्स विच कंटेन हिस्टामिन। लिम्फोसाइट सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स में काम आती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये जो सेल्स होती हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो डेड सेल होती हैं या कोई एंटीजन होता है, आउटर एंटीजन होता है, तो उसका फेगोसाइटोसिस करती है न्यूट्रोफिल्स। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1, A3, B4, C2, D1. Eosinophils are associated with allergic reactions and release histaminase and destructive enzyme. बेसोफिल सेल्स जो होती हैं वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन सिक्रीट करती हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती हैं। न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस करती हैं, और लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। इससे इजी क्वेश्चन तो पूरे नीट में नहीं आया। हम जब भी हम 11th में भी और 12th में भी दोनों क्लासेस में हमने पढ़ा है कि A ऑलवेज पेयर्स विथ T विद अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वेनिन G ऑलवेज पेयर्स विथ C विद अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू ट्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, यस इट इज़ करेक्ट। एडेनिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर होता है, नहीं। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नहीं। एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, A always pairs with T with double hydrogen bond. Sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed. वो सीक्वेंस जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है वेक्टर के अंदर, वो ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। इसका मतलब डीएनए की कितनी कॉपीज बनेंगी उसको कौन कंट्रोल करेगा, ओरी सीक्वेंस, ओराई सीक्वेंस कहते हैं, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए कि डीएनए की कितनी कॉपीज बनेंगी। सेलेक्टेबल मार्कर भी नहीं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी इनकरेक्ट है, और रिकग्निशन साइट ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट इज ओराई साइट। Identify the basic amino acid, very simple, direct question from NCERT. Lysine is a basic amino acid, ये लिखा भी है।
these there are acidic glutamic acid, basic lysine and neutral valine. Okay, so lysine is a basic amino acid. Okay, next question. Again, match the following. Match the following बहुत सारे हैं क्वेश्चन पेपर में, अराउंड 20% या 25% तो मैच द फॉलोइंग ही है. अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इसको मैच करते हैं. थ्री, डायबिटीज इंसिपिडिस. थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ग्रेव्स डिजीज. थायराइड ग्लैंड से जब एक्सेस सिक्रीशन होता है T3 और T4 हार्मोन का, तब ग्रेव्स डिजीज होती है. एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड एडिसन्स डिजीज. जो एडिसन डिजीज़ होती है वो हाइपोसिक्रीशन की वजह से होती है. एड्रीनल ग्लैंड से हाइपोसिक्रीशन होता है जिसकी वजह से एडिसन्स डिजीज़ होती है. और पैनक्रियाज डायबिटीज़ मेलाइटिस. तो डायबिटीज़ मेलाइटिस कब होता है? जब हाइपोसिक्रीशन होता है इंसुलिन का पैनक्रियाज से. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, A3, B1, C4 एंड D2. नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट हमें छांटना है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस. इसका मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन को, किसी और सोर्स से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया. नहीं, ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसीमिया से एसोसिएटेड होता है. Insulin acts on pancreatic cells and adipocytes. No. Insulin associated with hyperglycemia. No, it is associated with hypoglycemia. So the correct answer is option number 1. Next question. Which one of the following is the most abundant protein in animals? Animals में देखो collagen is the most abundant protein in animal world. और plants में अगर पूछा जाए तो plants में rubisco enzyme जो होता है वो most abundant protein होता है. एंजाइम तो है तो मतलब प्रोटीन तो है ही वो. तो रुबिस्को एंजाइम जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है प्लांट वर्ल्ड में. लेकिन एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन है वो होता है कोलाजन. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय. किसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था क्रोमोसोमल थ्योरी को? मेंडल ने नहीं किया था, सटन एंड बोवेरी ने नहीं किया था, बल्कि सटन एंड बोवेरी ने प्रपोज की थी क्रोमोसोमल थ्योरी. मॉर्गन ने उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट आपको याद होंगे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वगैरह. ये एक्सपेरिमेंट्स भी आपको पढ़ने हैं जब भी आप NCERT से प्रिपेयर करेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट्स भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं. और रिकॉम्बिनेशन लिंकेज जो टॉपिक है इस चैप्टर से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैच द फॉलोइंग अगेन फिर से आ गया. फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं वो पीछे तो वर्टिब्रल मतलब डॉर्सल साइड में तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं, लेकिन वेंट्रल साइड में स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती है, इसीलिए उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. तो दे डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम. एक्रोमियन प्रोसेस. अब देखो जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है वो क्लाविकल में होता है. स्कैपुला लोकेटेड होता है बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब. और ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ होती है? हेड ऑफ ह्यूमरस. ह्यूमरस के हेड पे प्रेजेंट होती है ग्लिनॉइड कैविटी. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4, A4, B3, C1, D2. नेक्स्ट द नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट level phosphorylation in one turn of citric acid cycle is. कितने phosphorylation होते हैं साइट्रिक एसिड की एक साइकिल में? उसमें सिर्फ एक phosphorylation होता है. कब होता है? जब GTP का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. So during the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. This is a substrate level phosphorylation. ये substrate level phosphorylation है जब GTP का फॉर्मेशन होता है.
So the correct answer here is option number 1. Sorry, option number 2, 1. डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है, साइनेप्सिस जब होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कब डिसॉल्व होता है, कौन सी स्टेज में? वो डिसॉल्व होता है डिप्लोटीन स्टेज में. डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसीलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय. अब देखो टीनोफोरा. टीनोफोरा में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होती है बल्कि रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये आंसर तो इनकरेक्ट हो गया. प्लेटीहेल्मिन्स में बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है और एसीलोमेट भी होते हैं ये एनिमल्स. एस्केल्मिन्स में बाइलेटरल सिमेट्री होती है लेकिन ये एसीलोमेट नहीं है. और एनालिड्स भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल तो है लेकिन एसीलोमेट नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, platyhelminths. The body of the ovule is fused within the funicle at. जो ओव्यूल है वो फ्यूज्ड रहता है किस पॉइंट पे? सो इट इज कॉल्ड एज हाइलम. अब देखो इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक. जो स्टॉक होता है उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, और ओव्यूल की बॉडी फ्यूज होती है फ्यूनिकल से किस जगह पे? हाइलम पे. गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम. गॉबलेट सेल्स किससे मॉडिफाइड होते हैं? कॉलमना एपिथेलियल सेल्स से. ये देखो सम ऑफ द कॉलमना और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम. और यहाँ कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. सो गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कॉलमना एपिथेलियल सेल्स से मॉडिफाइड होकर बनती हैं. लास्ट क्वेश्चन. स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू. स्नो ब्लाइंडनेस जब होती है एंटार्क्टिक रीजन में किस वजह से होती है? अब देखो एंटार्क्टिक रीजन में जो अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशंस जो होती हैं उससे कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन की वजह से स्नो ब्लाइंडनेस होती है. इट इज़ ऑल्सो रिटन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. In human eye, cornea absorbs UVB radiation and a high dose of UVB causes inflammation of cornea called snow blindness. Okay, so the correct answer here is inflammation of cornea due to high dose of UVB radiation. So with this we come to the end of today's video. So जो students already need 2020 दे चुके हैं, good luck to them. They can match their answers with this answer key and good luck. आपको I hope आपका selection हो जाए, अच्छे rank के साथ आपका selection हो. And the students who will be giving the examinations in next coming years, good luck to them also. Thank you.